study chapter 12. Our chapter 12 name is Natural Disasters. Explores. First is natural disasters, second is earthquakes, third is volcanoes, fourth is droughts and floods, fifth is tsunami, sixth is effects of natural disasters, seventh is rescue and relief, eighth is managing a natural disaster. What is special about the type of mountain shown in the following picture? क्या स्पेशल है जो आपको नीचे पिक्चर में माउंटेन शो कर रखा है? डू यू नो व्हाट सच अ माउंटेन इज कॉल्ड? क्या आप जानते हैं इस माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ माउंटेन शोन इन दिस पिक्चर इज कॉल्ड अ वोल्केनो. जो इस पिक्चर में माउंटेन शो कर रखा है उसको हम वोल्केनो बोलते हैं. अ वोल्केनो इज अ मेजर कॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर. जो वोल्केनो है वो मेजर कारण है नेचुरल डिजास्टर्स का. लेट वी नो मोर अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स, देयर कॉजेस एंड देयर इफेक्ट्स. चलिए नेचुरल डिजास्टर के बारे में और ज़्यादा जानते हैं, उसके कारण जानते हैं और उसके इफेक्ट्स के बारे में भी जानते हैं. Natural disasters. A natural disaster is a natural event that causes immense loss of life and property, often leaving people injured and homeless. जो natural disaster है वो natural event है जिसके कारण लाइफ प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और जो पीपल रहते हैं वो इंजर्ड भी हो जाते हैं और होमलेस भी हो जाते हैं. फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, वोल्केनिक eruptions, hurricanes and droughts are all natural disasters. सभी क्या natural disasters हैं. Earthquakes are sudden movements of parts of the earth's surface. तो earthquake एक sudden movement है अर्थ सरफेस के पास में. The earth crust is like a covering of the earth. जो अर्थ क्रस्ट है वो बिल्कुल अर्थ की कवरिंग की तरह है. It is made up of many huge pieces called plates. ये काफी सारी huge pieces से बनी होती है जिसको हम plates बोलते हैं. The plates float over the thick liquid layer inside the earth called mantle. तो plates से वो float करती है thick liquid layer के over अर्थ के अंदर जिसको mantle बोलते हैं. Sometimes the plates slide past each other causing an earthquake. कभी कभी जो प्लेट्स होती हैं slide past हो जाती हैं एक दूसरे से जिसके कारण earthquake होता है. The surfaces where the plates slip are weak points called fault lines. Surfaces जहाँ पर जो plates हैं वो slip हो जाती है काफी weak points होते हैं उनको fault lines बोलते हैं. Location directly above the fault line on the earth surface is called epicenter of the earthquake. और जो लोकेशन होती है डायरेक्टली fault line के ऊपर और सरफेस पर उसको हम epicenter बोलते हैं earthquake का. This picture shows formation of earthquake. Place, magnitude and destruction caused. 26 जनवरी 2001 में भूचाल गुजरात में हुआ था. डूबा 7.9 और डिस्ट्रक्शन के कारण 20,000 डेड हुए थे. 30 सितंबर 1993 प्लेस था लेक्टोर महाराष्ट्र. मैग्नीट्यूड 6.3 और इसके कारण 7,601 डेड हुए थे. 20 अक्टूबर 1991 उत्तरकाशी उत्तराखंड प्लेस है. 6.6 मैग्नीट्यूड है और 760 डेड हुए थे. 3 अगस्त 1950 प्लेस है असम. मैग्नीट्यूड है 8.5 और 532 डेड हुए थे. 12 जून 1897 शिलोंग मेघालय 8.7 एंड 1542 डेड. 16 जून 1819 कच्छ गुजरात 8.0 एंड 2000 डेड. Effects of an earthquake. When an earthquake happens, the ground trembles, shakes and heaves. जब earthquake होता है तब जो ground trembles होना, shake होना, heaves होना start हो जाता है. Roads crack, building collapse, pipeline burst, and a lot of destruction is caused. Roads crack हो जाती हैं, buildings collapse हो जाती हैं और pipelines वगैरह burst हो जाती हैं और काफी सारा destruction भी होता है. After a big earthquake, smaller tremors may occur. और काफी बड़े earthquake के बाद छोटे-छोटे tremors भी आते हैं. These are called aftershocks. इसको हम aftershocks बोलते हैं. The severity of an earthquake is measured by an instrument called seismometer. The severity earthquake की वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है जिसको हम seismometer बोलते हैं. The strength of an earthquake can be recorded on a Richter scale. जो strength है earthquake की Richter scale के द्वारा recorded की जाती है. Most minor earthquakes measure no more than 2 on Richter scale, but a reading of 8 means that towns or cities could be destroyed. मोस्ट माइनर अर्थक्वेक्स मेजर किए जाते हैं नो मोर देन 2 ऑन रिक्टर स्केल, लेकिन रीडिंग होती है 8. उसका मतलब होता है कि टाउन्स और सिटीज वगैरह डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. इन दिस पिक्चर शोज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक. So we cannot prevent earthquakes. We can minimize the damage to life and property with better planning and suitable building construction.
हम अर्थ को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं, लाइफ प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचा सकते हैं बेटर प्लानिंग करके और सुटेबल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके। द टाइमली रेस्क्यू एंड रिलीफ प्रोवाइडेड टू द विक्टिम्स कैन हेल्प रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो टाइमली रेस्क्यू और रिलीफ दिया जाता है विक्टिम्स को, उसके कारण काफ़ी हेल्प मिलती है कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी रिड्यूस नहीं होती है। इफ़ यू लिव इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, फाइंड आउट इफ इट इज अर्थक्वेक प्रूफ। जिसमें आप अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह में रह रहे हो तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो अर्थक्वेक प्रूफ हो। Volcanoes Volcanoes are the outlets in the Earth's surface for hot molten magma inside the Earth. जो volcanoes हैं वो outlets है और surface पर hot molten rocks अर्थ के अंदर। And the volcanoes erupt, hot magma और lava burst out to the surface through a vertical funnel called a vent. जब volcano erupt होता है तो जो hot magma और lava होता है वो बाहर निकल कर आता है सरफेस पर वर्टिकल फनल के थ्रू, जिसको हम वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्नो मोर। इसको आपको खुद से रीड करना है। नेक्स्ट समटाइम्स द लावा स्प्लिट कवरिंग एन एंटायर रीजन। कभी कभी जो लावा है वो पूरे रीजन में, पूरे जगह पर स्प्लिट हो जाता है, फैल जाता है। ऑन कूलिंग लावा सोलिडिफाइज एंड फॉर्म रॉक्स। और जब लावा ठंडा होता है तो वो सोलिडिफाइज हो जाता है, रॉक से फॉर्म बना लेती है। द मैग्मा इनसाइड द अर्थ इज वेरी हॉट। जो मैग्मा होती है अर्थ के अंदर वो काफी हॉट होती है, काफी गर्म होती है। अ लॉट ऑफ प्रेशर पुल्स अप अंडर द क्रस्ट ड्यू टू द हीट। और काफी ज्यादा प्रेशर बन जाता है क्रस्ट के नीचे हीट के दौरान। दिस हैपन्स ओवर सेवरल ईयर्स। ये काफी सालों तक चलते रहता है। द हॉट मैग्मा देन बर्स्ट आउट ऑफ द क्रस्ट। जो हॉट मैग्मा है फिर वो ब्रस्ट आउट हो जाता है क्रस्ट से। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू मे लाइकन द वोल्केनो इरप्शन टू द वर्किंग ऑफ अ प्रेशर कुकर। और सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लाइकिंग करते हैं वोल्केनो इरप्शन के लिए, वर्क करने के लिए, प्रेशर कुकर के लिए। एंड द प्रेशर बिल्ड्स अप इन अ प्रेशर कुकर बाय कुकिंग द रेगुलेटर ऑन द लिड लिफ्ट्स अप एंड स्टीम इज रिलीज्ड। जब प्रेशर जो है बन जाता है प्रेशर कुकर के अंदर खाने में टाइम, जब रेगुलेटर जो की लिड होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और स्टीम जो होती है वो रिलीज हो जाती है। इन दिस पिक्चर शोज एन इरप्टिंग वोल्केनो एंड दिस इज लावा। Types of volcanoes according to the level of activity, volcanoes can be of three types: active, dormant and extinct. Level of activity के अकॉर्डिंग जो volcanoes हैं तीन टाइप्स के होते हैं: active, dormant, extinct. Active volcanoes are those which erupt quite often. जो active volcanoes हैं वो volcanoes होते हैं जो धीरे से erupt होते हैं। Inactive volcanoes are found around the Pacific Ocean, forming an area called the Ring of Fire. अक्सर active volcanoes पैसिफिक ओशन के आसपास पाए जाते हैं, जो एरिया को बनाते हैं जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। Mount Etna in Cali, Mount Erebus in Antarctica and Barren Island in the Andaman Sea, India are some of active volcanoes. यहाँ पर कुछ नेम दे रखे हैं active volcanoes के। Next is dormant volcanoes are those that have not erupted for a long time but may erupt any time. Dormant volcanoes वे volcanoes होते हैं जो काफी लॉन्ग टाइम तक erupted नहीं होते हैं लेकिन वे किसी भी टाइम erupt हो सकते हैं। Extinct volcanoes are those that are dead and inactive. Extinct volcanoes वो होते हैं जो डेड और इनएक्टिव होते हैं। दिस पिक्चर शोज माउंट एल्ब्रस। नेक्स्ट इज स्मार्ट चेक इन द ब्लैंक्स। इस वाले एक्टिविटी को भी आपको खुद से कंप्लीट करना है। Droughts and floods. A drought happens when there are no rains for a long time, several months or even. ड्रफ्ट तब होता है जब किसी जगह पर नहीं तो काफी लंबे समय तक बारिश ना हो और महीनों साल तक बारिश ना हो। विदाउट रेन्स, रिवर एंड नेचुरल वाटर बॉडीज ड्राई अप एंड ग्राउंड वाटर लेवल गोज डाउन एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। बिना रेन्स के जो रिवर्स हैं और नेचुरल वाटर बॉडीज हैं वो सूख जाएंगे और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी गोज डाउन हो जाएगा। लैक ऑफ वाटर इफेक्ट्स और लिविंग बींग्स। पानी कमी से काफी सारे लिविंग बींग्स पर भी इफेक्ट होता है और वेजिटेशन इंक्लूडिंग फूड क्रॉप्स ड्राई एंड डाई। अभी वेजिटेशन जिसमें फूड क्रॉप्स में इंक्लूड है ये भी सूख जाते हैं और मर जाते हैं। दिस लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड व्हिच कॉजेज स्टार्वेशन। और इसके कारण शॉर्टेज ऑफ फूड भी होता है जिसके कारण स्टार्वेशन हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर द सॉइल बिकम्स ड्राई एंड लॉसेस इट्स फर्टिलिटी। पानी के एब्सेंस की वजह से जो सॉइल है वो ड्राई हो जाती है और अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देती है। यूजफुल इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म्स लिविंग इन द सॉइल डाई टू। जो यूजफुल इंसेक्ट्स, वर्म्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं वो भी मर जाते हैं। ऑल दिस रिजल्ट इन मास डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। के कारण काफी सारे डैमेज और डिस्ट्रक्शन भी होता है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल और एफोरेस्टेशन हेल्प्स क्लाउड्स टू ब्रिंग रेन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, लार्ज स्केल में एफोरेस्टेशन करना, ये क्लाउड्स की हेल्प करते हैं बारिश को लाने में। तो एफोरेस्टेशन इज अ गुड वे टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ड्रफ्ट। तो जो एफोरेस्टेशन है वो अच्छा तरीका है ड्रफ्ट के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए। ऑल्सो वाटर कैन बी स्टोर्ड in dams and reservoirs and supplied in times of need to the affected areas। और पानी को स्टोर भी करना चाहिए डैम्स और रिजर्वोर्स में
और जब ज़रूरत पड़े अफेक्टेड एरियाज में तब उसे सप्लाई भी करनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स गुड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें गुड प्लानिंग और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। A flood is an overflow of water that submerged land। जो फ्लड है वो ओवरफ्लो है वाटर का जो लैंड में सबमर्ज हो जाता है। Floods occur when rivers break river banks and water surges into surrounding areas। जो फ्लड तब हो जाती है जब जो रिवर्स है वो ब्रेक हो जाती है, रिवर बैंक्स वगैरह ब्रेक हो जाती है और वाटर सर्जेस हो जाता है हमारे आसपास के सराउंडिंग एरियाज में। इन अवर कंट्री फ्लड्स आर कॉमन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हमारी कंट्री में जो फ्लड्स है वो कॉमन है मानसून सीजन में। समटाइम्स हैवी रेनफॉल आल्सो रिजल्ट इन फ्लड्स व्हिच आर शॉर्ट लिव्ड बट डिवास्टिंग। कभी-कभी तो जो हैवी रेनफॉल है इसके कारण रिजल्ट निकल के आता है फ्लड्स का, जो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है लेकिन डिवास्टिंग भी होता है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस, germs spread and there is an outbreak of diseases such as jaundice, malaria and chlamydia। और वाटर लॉगिंग की वजह से जो अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, जर्म्स वगैरह फैल जाते हैं, आउटब्रेक हो जाते हैं, डिसीज वगैरह फैल जाते हैं, जैसे जॉन्डिस, मलेरिया एंड कॉलरेरा। नेक्स्ट स्मार्ट सेक, इसको आपको खुद से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज सुनामी। टाइडल और स्टॉर्म वेव्स आर आल्सो कॉल्ड सुनामी। टाइडल और स्टॉर्म वेव्स को भी सुनामी बोलते हैं। प्रोनाउंस सुनामी को सुनामी बोलते हैं। द जापानीज नेम गिवन टू देम, जी जापानीज ने नेम दिया था इसका। दे आर caused by an undersea earthquake और by a Gulf hurricane और cyclone। इसके कारण अंडरसी अर्थक्वेक और इसके कारण गल्फ ह्यूरिकेन के द्वारा साइक्लोन वगैरह भी हो सकते हैं। स्टॉर्म्स वेव्स फ्रॉम द सी कम रोलिंग टुवर्ड्स द शोर। जो स्टॉर्म्स वेव्स हैं वो सी से आती है रोलिंग होती हुई शोर की तरफ। दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन द सी शोर इन सेकेंड्स, और ये मिनटों में सी शोर में काफ़ी डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन जाती है। tidal waves as high as 15 मीटर have been recorded। tidal waves हैं वो काफ़ी हाई है, 15 मीटर जो है रिकॉर्डेड की गई है। इफ देयर इज ऑलरेडी अ हाई टाइड देन द स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट द लैंड। यदि ऑलरेडी हाई टाइड हो तब जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं वो लैंड को हिट कर देती हैं। दे कैन कोज सम डैमेज, इसके कारण काफ़ी डैमेज भी हो सकता है। these giant waves travel at a speed of 800 किलोमीटर पर आवर। जो जेट वेव्स होती हैं ये 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। दिस रिजल्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द एरिया, और उस जगह पर लाइफ और प्रॉपर्टी में डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। The picture shows how a tsunami takes place. Next is effects of natural disasters. First is loss of life and property। लाइफ और प्रॉपर्टी में भी लॉस होता है। सेकंड इज लॉस ऑफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड, लिवलीहुड में भी लॉस होता है। नेक्स्ट स्प्रेड ऑफ डिसीजेस ड्यू टू कंटेमिनेंट एयर वाटर एंड फूड। कंटेमिनेटेड एयर वाटर एंड फूड की वजह से डिसीजेस वगैरह भी फैल जाती हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड एज इलेक्ट्रिक वायर्स इज स्नैप। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी अफेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो स्नैप हो जाते हैं। Rescue and relief. If a natural disaster strikes an area, the government makes arrangements for evacuation, that is, removal of people from disaster affected area। जब नेचुरल डिजास्टर स्ट्राइक हो जाता है किसी एरिया पर तो गवर्नमेंट को अरेंजमेंट्स बनाने चाहिए इवैक्यूएशन के लिए, और उस अफेक्टेड एरिया में जहाँ पर डिजास्टर हुआ है वहाँ से पीपल को रिमूवल करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड टू रेस्क्यू बाय एयरलिफ्टिंग पीपल स्ट्रैंडेड इन द अफेक्टेड एरिया। हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है एयरलिफ्ट के द्वारा पीपल को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए। उस अफेक्टेड एरिया में से इमीडिएट रिलीफ इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, वाटर एंड मेडिकल सर्विस। इमीडिएट रिलीफ सप्लाई की जाती है जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, वाटर, मेडिकल सर्विसेज के फॉर्म में। रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड विक्टिम्स इज डन बाय फाइंडिंग शेल्टर, क्लॉथिंग जॉब्स एंड स्लोली रिहैबिलिटेट देयर ग्रेव्स। और जब रिहैबिलिटेशन हो जाती है, वो डिस्प्लेस हो जाती है विक्टिम्स में, तब वो शेल्टर, क्लॉथिंग जॉब्स धीरे धीरे रिहैबिलिटेट कर लेते हैं अपने रहने के लिए। Relief and rescue operations are carried on by the government and international organizations like the UN, its United Nations, and USAID, its United States Agency for International Development, and also by NGOs। ये जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन में यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, और एनजीओज के द्वारा भी। द कम्युनिटी एज अ होल ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलीफ बाय कंट्रीब्यूटिंग मनी, मेडिसिन, फूड एंड क्लॉथिंग। जो कम्युनिटी होती है वो भी पूरी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, कंट्रीब्यूट मनी को कंट्रीब्यूट करने के द्वारा मेडिसिन, फूड्स एंड क्लॉथिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। Managing a natural disaster. In times of natural disaster, our courage, strength, and human skills are put to test। किस टाइम जब कभी कभी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो हमारा जो करेज होता है, स्ट्रेंथ होती है, तो इसके टेस्ट होता है जो हैव टू ट्राई एंड डू द फॉलोइंग इफ यू आर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय नेचुरल डिजास्टर। आपको इन सबको करने की कोशिश करनी चाहिए
यदि आप अफेक्टेड हो जाएं डायरेक्टली नेचुरल डिजास्टर्स के द्वारा। फर्स्ट इज कीप योरसेल्फ अलाइव, अपने आप को अलाइव रखना है। नेक्स्ट रिमेन काम एंड पॉजिटिव, आपको शांत रहना, पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट हेल्प पीपल इफ पॉसिबल, यदि हो सके तो आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट सीक हेल्प योरसेल्फ फ्रॉम एनी अवेलेबल सोर्सेज, आपको अपनी भी हेल्प करनी चाहिए किसी भी अवेलेबल सोर्सेज से। नेक्स्ट अप्रोच रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्कर्स एज सुन एज यू कैन, तो जल्दी आप कर सकते हैं, आपको रिलीफ वर्कर्स, रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्कर्स को अप्रोच करना चाहिए। If a natural disaster has occurred in a place and you are not directly affected, you could lend a helping hand by. यदि नेचुरल डिजास्टर्स हुआ है किसी जगह पर और आप डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हुए, तो आपको लैंड या फिर हेल्पिंग हैंड के द्वारा करना चाहिए। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग डोनेशन टू गवर्नमेंट और एनजीओ टू रीच द अफेक्टेड पीपल, आपको अफेक्टेड पीपल तक पहुँचने के लिए गवर्नमेंट एनजीओ वगैरह के थ्रू ऑर्गेनाइज करना चाहिए। नेक्स्ट डोनेट फूड, क्लॉथिंग, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन, फूड वियर और एनीथिंग दैट मे बी हेल्पफुल, आपको फूड, क्लॉथिंग, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन, फुटवियर, कुछ भी चीज़ जो भी हेल्पफुल हो उसको डोनेट करना चाहिए। नेक्स्ट इंकरेज अदर्स अराउंड यू टू डू द सेम, आपको अपने आसपास के लोगों को भी इंकरेज करना चाहिए कि वो भी आपकी तरफ सेम वर्क ही करें। माइंड स्पार्कल, फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर्स अकर ड्यू टू नेचुरल फॉर्सेस, नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो नेचुरल फॉर्सेस के कारण होते हैं। नेक्स्ट अर्थक्वेक्स, ड्रॉप्स एंड फ्लड्स वगैरह नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे भी क्या नेचुरल डिजास्टर्स हैं। नेचुरल डिजास्टर्स कोज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, नेचुरल डिजास्टर्स के कारण लाइफ और प्रॉपर्टी में भी काफी लॉस होता है। नेक्स्ट रेस्क्यू एंड रिलीफ आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी, तो रेस्क्यू रिलीफ है नेचुरल डिजास्टर के बाद जो ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट, एनजीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी के द्वारा। लास्ट इज विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स नीड टू बी रेस्क्यूड एंड रिहैबिलिटेशन, नेचुरल डिजास्टर्स वाले विक्टिम्स को जरूरत होती है रेस्क्यू की और रिहैबिलिटेट की। दिस चैप्टर इज कंप्लीट।